Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 24, Knowing Northern India. Okay, so children, in this chapter, we will be learning about some places in northern India. Now, northern India means the north part of the India. So you have studied the directions, so you know where is the north part of the India. So north part of the India, I will give you the name of the states which comes in the north place of India, that are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar. Okay, so these are some of the states which are coming in the north of India. So we will be learning about some places in North India. So let's start. I will read the questions for you. The first one is, okay, before that, there are three pictures given in your book. You have to name the place where these structures are built or where these monuments are built. ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो तीन पिक्चर्स हैं स्टार्टिंग में पेज में, आपको ये बताना ये कहाँ पर हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ शांति स्तूपा. द फर्स्ट वन इज़ शांति स्तूपा. नाउ शांति स्तूपा इज़ इन द लेह district. Okay, it was a district before. Leh district was before when Jammu and Kashmir was a state. ठीक है, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी. सो दिस ले इज़ नाउ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर में को दो यूनियन टेरिटरीज़ में बदल दिया गया है. एक है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी है लद्दाख यूनियन टेरिटरी. तो जो लेह शहर है, लेह सिटी है, ठीक है, वो अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आती है. और उस लेह में एक जगह है, एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, उसका नाम है शांति स्तूप. ओके, सो देर इज़ अ वेरी टॉल स्टैचू ऑफ बुद्धा बिल्ट ओवर देयर. ठीक है. Now the next one is Lotus Temple. Now Lotus Temple, it is situated in the place of, in which place? Delhi. ठीक है, it is in Delhi. Now Delhi is also a union territory, okay, in the northern India. तो दिल्ली में कहाँ पर है ये? दिल्ली में there is a place called Mehrauli, where you will find the Qutub Minar, the Iron Pillar. तो उसी के पास में this structure is also there, Lotus Temple. It is a very beautiful structure. This structure is showing the religion. This structure, ये जो temple है वो किस religion का है? It is Baha'i religion. Baha'i religion is also one of the religion from Persian countries, or you can say the Western Muslim countries. Okay, so this structure is built in Delhi. Now the third one is Lakshman Jhula. Most of you would be familiar with this Lakshman Jhula. It is not a jhula, it is a bridge. Okay, a bridge over the Ganga river. So this place is in, this bridge is in Rishikesh. Okay, Rishikesh is a place in Haridwar. Haridwar is a district in उत्तराखंड स्टेट. ठीक है, तो ये आपका वहीं पर है. Now next is arrange the letters in the correct order to learn more about the mountains and states of northern India. Now you have been given some clues and also you have to name the state. और उस स्टेट का नाम भी दिया हुआ है, बट उसके जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हैं, तो आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है.
The first one is the remains of Nalanda. What is Nalanda? Nalanda is a university. The remains of Nalanda University, an ancient university, it is given there, okay, of international repute, is in this state. Of international repute means international importance. Repute means importance. Reputation, reputation का शॉर्ट में बोला हुआ है repute, ठीक है. तो द रिमेन्स ऑफ नालंदा एंड एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट इज़ इन दिस स्टेट. किस स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी के रिमेन्स हैं? रिमेन्स मीन्स उसके अवशेष हैं, मतलब उसकी जो बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग थी, बहुत ही पुरानी ये यूनिवर्सिटी थी, तो वो तो टूट गई. तो जो टूटने के बाद जो उसके बचे कुचे पार्ट्स हैं या जो अब दीवारें हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, वो कौन सी जगह पे हैं, किस स्टेट में हैं? सो इट इज़ इन बिहार स्टेट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज़ द होम ऑफ दलाई लामा इन इंडिया. नाउ ये कौन सी जगह है जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं इंडिया में? वैसे तो हु इज़ दलाई लामा? दलाई लामा इज़ दी किंग, यू कैन से किंग ऑफ विच कंट्री? तिब्बत, ठीक है. तिब्बत एक कंट्री थी पहले. नाउ इट हैज़ बीन एनेक्स्ड बाय चाइना, ठीक है. चाइना ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है तिब्बत पे, और उस तिब्बत कंट्री के जो राजा होते थे वो दलाई लामा उनको बोलते हैं, ठीक है. तो दलाई लामा वहाँ से भागकर इंडिया में आ गए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है चाइना से. तो वो इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में किस जगह रहते हैं? धर्मशाला, ओके. धर्मशाला इज़ अ प्लेस इन उत्तराखंड स्टेट, ठीक है. धर्मशाला इज़ अ प्लेस इन उत्तराखंड स्टेट. और ये जो आंसर है उसका वो आंसर भी वही है, धर्मशाला, ठीक है. इट इज़ अ टूरिस्ट प्लेस. इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, और यू कैन से हिली एरिया, ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज़ दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन इंडिया एंड इज़ नोन फॉर इट्स मैनी घाट्स. घाट्स मतलब जो रिवर के किनारे का जो एरिया होता है उसको घाट बोलते हैं, ठीक है. नाउ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जो बहुत ही पुरानी सिटी है इंडिया की, और उसको किस लिए जाना जाता है? बहुत सारे घाट के लिए. तो वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, कहते हैं वहाँ पे 84 घाट हैं. 84 घाट्स आर देयर इन विच सिटी? वाराणसी और बनारस, ठीक है. उसको बनारस भी बोलते हैं. एंशिएंट नेम बनारस है, सॉरी एंशिएंट नेम उसका है काशी, ठीक है. उसके बाद उसको बोलने लगे थे बनारस. नाउ इट इज़ रिटन एज वाराणसी. सो इट इज़ अ प्लेस बिल्ट अलॉन्ग दी गंगा रिवर. ये एक शहर है जो गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और ये सबसे पुराना शहर है पूरे इंडिया में, कह सकते हैं. बहुत हज़ारों साल पुराना शहर है. और इस सिटी में गंगा रिवर उसके किनारे से निकलती है, और उसमें बहुत सारे घाट हैं, ठीक है. सो दिस सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ घाट्स ऑल्सो. नाउ द फोर्थ वन इज़ दिस माउंटेन सिस्टम फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर फ्रॉम द नॉर्थ टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ आप समझ गए बिल्कुल टॉप पे, लाइक जम्मू एंड कश्मीर. और ईस्ट में आप समझ गए लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम. दीज आर दी स्टेट्स इन ईस्टर्न साइड, यू कैन से नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ठीक है. तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड स्टेट्स हैं. तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जो भी ये एक माउंटेन्स की बेल्ट है, एक रेंज है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिमालयाज़, or you can say Himalayan range. So the answer is Himalayas. And it also forms a natural barrier from north to the east of India. Natural barrier means, barrier का मतलब होता है रुकावट.
तो एक तरीके की ये हमारी प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम नॉर्थ। अगर हमारे नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में ऊपर कौन सी कंट्री है, दैट इज़ चाइना। तो चाइना कैन इन्वेड इंडिया वेरी इजली, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके और हमारे बीच में बहुत बड़ी दीवार है, और वो दीवार किस चीज़ की है? वो पहाड़ों की दीवार है। और वो कौन से पहाड़ हैं? हिमालयन रेंज, हिमालय के पहाड़ हैं कई सारे। ठीक है, वो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, नागालैंड तक सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो वो उस पहाड़ की वजह से हम सेफ़ रहते हैं। ठीक है, कि उधर नॉर्थ से हमारी तरफ कोई कंट्री पे इन्वेजन मतलब अटैक नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ, दिस टाउन इन हिमाचल प्रदेश इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट डैश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी सिटी है? दैट इज़ शिमला। ठीक है, शिमला इज़ द city in Himachal Pradesh, or you can say it is a town area. In this book it is written town, so Shimla is a town. And this ends up your chapter. So children, if you want to ask anything related to these questions, you can ask in the class WhatsApp group. Thank you children.